Hello friends, good afternoon. My name is Vikas Agarwal and I am the founder of AIF and PMS Experts India. So AIF, is nothing but alternate investment funds, and PMS is your portfolio management services. So I'm glad to share that we are one of the largest platform in India when it comes to investing in alternate investments and portfolio management services. So we've got a team of 14 people and their full-time job is to analyze which AIFs and PMSs are doing well and help all our clients to choose the best portfolio based on their risk appetite. So at AIF and PMS Experts India, we keep organizing these knowledge-based sessions, and the whole idea is to add more value to our investors, help them know what's happening in and around the economy, and therefore we invite industry experts to our office and we interview them. And I'm glad to share that with me I have Nishit Shah from Phillip Capital. Nishit is the fund manager at Phillip Capital in India, and they bring about a good amount of expertise when it comes to global investing, and also they are domestically very strong in terms of portfolio management services. So what I thought is I'll try and read Nishit's mind and share his almost 15 years of experience, and we'll start the session. Yeah. Okay. Sure. So first of all, thank you so much for accepting our request, Nishit, and coming all the way from Bombay to Pune. No, thanks Vikas. Actually, you guys are doing a great job. Main thing is educating the investors, and I think that is why you play a very, very important role. And actually, kudos to you and your entire team for doing this knowledge-based series with the experts across the country. And I think, thanks to Vikas and the entire team at AIF PMS Experts for inviting me. Yeah. Now, before I begin, I must appreciate your kind of commitment that you bring on the table, and it's a industry feedback for you that your passion to really help investors and differentiate yourself in terms of your own commitment to them. You are always available to all of us and all the investors. Sure. I mean, I've seen you talking to clients late night, tweeting their ideas. I mean, truly appreciable. This kind of commitment only will help AIF and PMS industry to grow. Yeah. So that is So what I understand, when someone is investing into PMS or AIF, the ticket sizes are higher, 50 lakhs, 1 crore. Right. These are hard-earned money of an investor which he has accumulated over the years. And then somewhere he is trusting us as the fund manager. Of course, Phillip Capital as a big global brand gives him that comfort, that safety, but somewhere he is also trusting the fund manager. And not only here, if anywhere he invests, an investor, he is trusting the fund manager. So we need to take it as a personal responsibility. So this is not small amount, 1,000, 5,000 rupees lottery liya, call option liya, chala or nahi chala. It is hard-earned money of your investor, and that is why we take a lot of responsibility and pride in managing the investors' money, and that is what sets us apart. Agreed. And this was the question from one of our investors. He asked us why only AIF and PMS and why you're building. Because I feel that this industry is highly scattered. There are a lot of AIF, there are good AIF managers and PMS managers, deserving managers, but allocation is not reaching out to them. True. And there are good investors, but they don't have access to these good quality portfolios. So that is where our responsibility comes into picture, that we get all the parties together. So all of us come on the same platform through this AIFPMS.com, and the idea is to let people know. Then only they will get more knowledge and wisdom to invest in Indian equity markets. Agree. Yeah. So let's start the session, Nishit. पहले तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि so you're one of the finest fund manager in India. So when you were studying, and there are a lot of candidates that keep asking me that they aspire to become fund manager. So what made you a good fund manager? How did you reach out to this? Of course, I am not one of the finest fund managers. There are many good fund managers. Of course, and it's always a learning curve. हमेशा एक learning curve है. Equity markets बोलते हैं समुंदर के जैसा है. So the more you learn, the better it is. Of course, बहुत सारे बार मिस्टेक्स भी होते हैं, एंड दैट द मोर यू डीप डाइव द मोर यू सो इसमें सी हाउ आई एक्चुअली मैं कैसे फंड मैनेजर बना, तो बीइंग अ गुजराती या गुजराती कम्युनिटी से आया हो, तो स्टॉक मार्केट हमारे नर्व्स में रहता है या काइंड ऑफ थिंग. तो ऑफ कोर्स मैंने मेरे फैमिली का पोर्टफोलियो मैनेज किया है. देन ऑफ कोर्स
MBA किया मैंने, तो तभी देन आई वर्क एक बहुत छोटे ब्रोकर से स्टार्ट किया मैंने, तो तभी मेरे को पता चला कि नहीं है बहुत सारा, पर 99% of the investors who come, they don't know क्या करना है मार्केट में, क्या किधर इन्वेस्ट करना है, क्या नहीं करना है. They don't have the right wherewithal, पैसा है सब है, पर वो बोलते हैं ना समझ नहीं है, या मे बी राइट पर्सन नहीं है गाइड करने के लिए. सो दैट इज वाई मेरा जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ. मेरा पहले जर्नी ऑफकोर्स सेल साइड पे था, मैंने सेल साइड पे अच्छा खासा टाइम बिताया, तो तभी मैंने फंड मैनेजर्स से बहुत करीबी से देखा कि अक्रॉस द बोर्ड म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, प्रॉप डेस्क कैसे काम करते हैं. दैट टाइम आई ऑलवेज कि नहीं आगे जाके कभी भी मैं मेरे करियर में आगे बढ़ूंगा तो एक फंड मैनेजर रोल वुड बी, दैट इज व्हाट आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो धीरे धीरे मैंने मेरी कैपेबिलिटीज किए. पर इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है, आपने जैसा पूछा कि क्या चाहिए, passion. I think that is the only, if one of the top ingredients, and it is not only for fund management, कोई भी इंडस्ट्री रहेगा, कोई भी स्पोर्ट्स में रहेगा, फील्ड रहेगा, पैशन इज दैट इज आपको वो चाहिए, या उसके बिना यू वुड नॉट बी एबल टू गो अहेड. या एक बार पैशन आ गया, देन ऑफ कोर्स हार्ड वर्क, देन ऑफ कोर्स लक आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, काइंड ऑफ अ थिंग. बट या पैशन सबसे ऊपर है. करेक्ट, वेल सेड. सो हाउ इज द टिपिकल डे ऑफ एनी फंड मैनेजर? आप अपना दिन कैसे चालू करते, थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को बताइए. शाम तक आप क्या क्या एक्टिविटीज देखते हैं, कौन से आप साइट्स देखते हैं या सॉफ्टवेयर देखते हैं जो आपकी मदद करता है एनालिसिस को अच्छे से करने? तो मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल से हूँ, काइंड ऑफ अ थिंग. तो ऑफकोर्स सब टूल्स अवेलेबल है. फिलिप कैपिटल बहुत ही बड़ा कंपनी है, तो सब हमारे पास टूल, वेयरविथल, सॉफ्टवेयर्स, ब्लूमबर्ग टर्मिनल सब अवेलेबल है. पर मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ. तो एंड वन थिंग आई ऑल्सो क्या है, ये ज़माना में है ना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. मैं जब भी मेरा करियर स्टार्ट किया तभी कोई बड़े MNC कंपनी का ब्रोकिंग हाउस का रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के लिए 1 महीना 2 महीना रुकना पड़ता था, 10 लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता था. आज तो इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है. तो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई ट्राई टू डू इज एक्चुअली हाउ टू अवॉइड द नॉइज. दैट इज व्हाट आई, सो आई एम दैट वे वेरी काम पर्सन एंड ऑल दोस थिंग्स. सो एकदम कामली, तो मैं न्यूज़पेपर है, थोड़े बहुत वेबसाइट्स है, आई स्टार्ट माई डे विद दैट. क्या हुआ ओवरनाइट, कुछ है इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा. पर हम लोग मैक्रोज पे इतना ध्यान नहीं देते. या ऑफ कोर्स मैक्रोज आर इम्पोर्टेंट, पर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग बहुत ही, सो वो दिन उससे थोड़ा न्यूज़ से स्टार्ट होता है. देन ऑफ कोर्स आई रीच ऑफिस, ट्राई टू, मैं थोड़ा जल्दी पहुंचने का ट्राई करता हूँ. या देन सब स्टडी करता हूँ, मैं मेरे टीम के साथ बैठता हूँ कि क्या हुआ, ये कंपनी में क्या हो रहा है, ये कंपनी में क्या हो रहा है. या क्या आज हमारे सपोज एक कंपनी का कुछ इशू हुआ है, या सो वी वुड लाइक टू बी ऑन टॉप ऑफ इट, क्यों हुआ, क्या हुआ, काइंड ऑफ. तो हम लोग पूरा एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं. मैनेजमेंट मीटिंग्स के लिए जाते हैं, पर मोर देन मैनेजमेंट मीटिंग्स के हम लोग ग्राउंड लेवल चेक्स पर ज़्यादा बिलीव करते हैं. तो कोई डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, अभी सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अभी फिनोलेक्स केबल्स या पॉलीकैब करके कंपनी है, ओके, वो हमारे यूनिवर्स स्टॉक्स यूनिवर्स में. तो अभी उस पर मेरे को रिसर्च करना है. तो लुहार चाल करके एक बॉम्बे में जगह है, या विच इज़ लाइक अ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स. तो मैं उधर जाऊंगा कि क्या चल रहा है, कि ये पॉलीकैब क्यों चल रहा है, फिनोलेक्स का पेमेंट टर्म्स क्या है, बजाज इलेक्ट्रिकल कैसा कर रहा है. तो ये सब हम लोग डिटेल में उनके वेंडर से ही बात, वेंडर से, एम्प्लॉई से, उनके सप्लायर से, उनके ऑडिटर से, एक्स एम्प्लॉय से, ये हम लोग डीप डाइव रिसर्च बहुत करते हैं. तो ऑफकोर्स उसके लिए ट्रैवल भी करना पड़ता है. तो हम लोग पुणे जाते हैं, अक्रॉस इंडिया सब जगह पे जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. तो बिकॉज वो आपको पल्स देता है. व्हेन आप एक स्कटल बट रिसर्च करते हो, वो आपको सही दिखाता है. सी मैनेजमेंट्स अच्छे रहते हैं, बट दे विल ऑलवेज, उनका एक बायस ओपिनियन रहेगा. पर आप जब भी ये आप स्कटल बट रिसर्च करते हो, तभी आपको पता चलता है कि नहीं ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है. तो मेरा पूरा मेजॉरिटी ऑफ द डे उसमें जाता है. देन ऑफ कोर्स हम लोग, आपने जैसा बताया, मैं अच्छा खासा टाइम एक इन्वेस्टर के साथ भी दिन में 1-8 घंटा मेरा टाइम जाता है, 1 से 1.5 घंटा इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन करना. बिकॉज हम लोग का मानना क्या है कि ऑफ कोर्स
हम लोग decent as far as fund management, but this industry is more about client expectation management as well. Yeah, तो उनके साथ भी अच्छा परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस हैंड होल्ड करना पड़ता है. बहुत बार क्या रहता है, अभी आज जो भी PMS में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका खुद का बिजनेस है या मे बी दे आर डूइंग अ जॉब, तो उनसे भी अच्छा खासा पर्सपेक्टिव मिलता है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर सो मच इन टच विद द because these clients are from different industry and they give you तो एक मेरा क्लाइंट था, हम लोग ने एक बहुत टाइम पहले एक केमिकल कंपनी देखा था, तो मेरा ऐसे ही उनसे बात हुआ, तो अच्छा खासा हम लोग का रिसर्च हो चुका था. वी आर ऑलमोस्ट ऑन वर्ज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बोला जैसे भूल जाओ ये कंपनी. तो दैट इज व्हाट सो ऑफ कोर्स देन आई आस्क्ड हिम, देन वी वेंट बैक, हम लोग ने देखा तो वो बोला नहीं ये जो बोले वो सही लग रहा है काइंड ऑफ. तो मैं तो समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स जो अलग अलग फील्ड से आते हैं वो जो फीडबैक देते हैं वो शायद आपको डायरेक्ट फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द डे इज ओवर आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, नहीं काम ऑफ कोर्स काम इम्पोर्टेंट है, पर एक फैमिली टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट टू डू de-stress and all those things. So that is how my day goes. So ऐसा कुछ मतलब कुछ है नहीं ज़्यादा, no rocket science, kind of simple kind of the day. No, well said. So अभी निशित जी अभी थोड़ा सा आपके कंपनी और फंड्स के बारे में आते हैं. So Phillip Capital, knowing the fact that you guys have presence across the globe. सो दो चीज़ें इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ. पहला आपका डोमेस्टिक PMS और उसके बाद में विल कम टू ग्लोबल PMS. सो डोमेस्टिक में आपका एक और वन ऑफ द पोर्टफोलियो दैट यू मैनेज इज कि आप PMS प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं. जनरली क्या होता है, इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो अपने एडवाइजर्स के थ्रू मैनेज करते. तो ये PMS प्लेटफॉर्म पे आप क्या डिफरेंशिएशन लाते हैं? तो एक मैं पहले फिलिप कैपिटल का थोड़ा, सो दैट वे ऑफ कोर्स फिलिप कैपिटल बहुत ही बड़ा कंपनी है. वी आर स्प्रेड अक्रॉस 16 कंट्रीज ग्लोबली. बहुत ही $45 बिलियन अंडर एसेट एंड कस्टडी ग्लोबली मैनेज करते हैं. या सिंस 45 इयर्स एस्टैब्लिश हुए हम लोग को, 45 प्लस इयर्स, तो बहुत ही एक बड़ा कंपनी है. इंडिया में भी वी हैव गॉट मोर देन 20 इयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस काइंड ऑफ थिंग. तो बहुत ही अच्छा काम है. 25 लोग का हम लोग का रिसर्च टीम है. एंड वेरी वेल नेट फैमिली काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. I have been managing the PMS since the launch in 2016. तो हम लोग के पास 3 से 4 अलग अलग सब प्रोडक्ट है. आपने जो बात किया जो म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, सो उसका वो स्ट्रैटेजी का नाम है फिलिप स्टार पोर्टफोलियो. ओके. तो हम लोग ने ये क्यों लॉन्च किया, म्यूचुअल फंड सही है, ओके, पर कौन सा फंड सही है. सो दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. राइट. वो सब एडवर्टीजमेंट हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, पर कौन सा फंड. बिकॉज आज क्या हो गया, क्लोज टू अराउंड 1000 प्लस म्यूचुअल फंड स्कीम हो गए, 25 से 30 AMC हो गए. जो अच्छा था, से सपोज म्यूचुअल फंड स्कीम विच वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम 5 years बैक was one of the worst performing scheme. Right. तो हम लोग ने पूरा एनालिसिस किया कि म्यूचुअल फंड पूरा एक है ना स्टार रेटिंग पे चलता है. ओके. और 5 स्टार रेटिंग एक बार हो जाता है, पीपल काइंड ऑफ एडवाइजर्स है, ये इन्वेस्टर्स है, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इट. ओके. अच्छी चीज. तो आपका कहना है कि सिर्फ रेटिंग पे मत जाइए. बट रेटिंग हम लोग ने एक एनालिसिस भी किया, एक बार 5 स्टार रेटिंग आ जाता है, देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस दैट फंड विल अंडर परफॉर्म. एक तो कॉम्प्लेसेंट, और दूसरा क्या हो जाता है, सिंस मैं आपको एक नाम नहीं दूंगा स्कीम का, फ्रॉम अ वेरी गुड AMC स्मॉल कैप फंड था, बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड. ओके. तभी उसका AUM था 700-800 हजार करोड़. ओके. अचानक से बिकॉज 5 स्टार रेटेड हो गया, तो AUM बहुत सारा आ गया. ओके. 1000 करोड़ का 2500 3000 करोड़ हो गया. अभी वो फंड मैनेजर वेरी वेल रिस्पेक्टेड, वेरी वेल नोन एंड वेरी गुड नॉलेजेबल फंड मैनेजर, पर ही हैड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, क्योंकि इतने सारे AUM आ गया, नया इन्वेस्टर्स आ गए. तो पहले क्या था, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कोई भी कंपनी का जिसमें प्रमोटर होल्डिंग लेस देन 45% है, वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते थे. पर आफ्टर अ पॉइंट अभी वो 1000 करोड़ पे मैनेज हो सकता था, आज 3000-4000 करोड़ उनका AUM हो गया. अभी इतने लिमिटेड कंपनी है, सो देन व्हाट, उनको डाइल्यूट करना पड़ा. ओके. उनका कि अभी 30% मैनेजमेंट प्रमोटर होल्डिंग रहेगा, उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफकोर्स हम लोग भी बैक डेटा देखते हैं, पर सिंस वी अंडरस्टैंड इक्विटी, हम लोग उनका पोर्टफोलियो पूरा एनालिसिस करते हैं. क्या पोर्टफोलियो, क्या इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है,
वो फंड मैनेजर को जाके ट्राई करते हैं मिलने का, क्या है उनका थॉट प्रोसेस एंड ऑल दोस थिंग, एंड देन वी इन्वेस्ट इनटू 4 to 5 स्कीम्स। या सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के लिए हम लोग को फंड मैनेजर का क्या जरूरत, पर अगेन या म्यूचुअल फंड सही है पर कौन सा, या ऑफ कोर्स एडवाइजर्स आल्सो डू अ वेरी गुड जॉब, बट वी बिलीव दैट इफ वी आर एबल टू इवन ऐड 1 or 2% एक्स्ट्रा अल्फा टू द रिटर्न्स, देन वी वुड हैव डन अ वेरी गुड जॉब ऑफ। तो हम लोग पूरा एक एनालिसिस करते हैं बैक डेटा का, देन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का, देन वी कीप ऑन कॉन्स्टेंटली कीप ऑन मॉनिटरिंग क्या अच्छा चल रहा है। हम लोग को लग रहा है कि कोई थीम्स है कि हम लोग को बीच में लगा था एमएनसीज बहुत ही अच्छा करेंगे, तो देन हम लोग एमएनसी स्कीम्स है या उस पे आप एक्सपोजर देंगे। फिक्स्ड इनकम थोड़ा टाइमिंग करते हैं वहाँ पे? फिक्स्ड इनकम सी हम लोग हमारे पीएमएस में क्या करते हैं, अक्रॉस ऑल द स्ट्रैटेजीज, yeah, we are little bit different. We do not invest everything on day one itself. We stagger the investments. Yeah, we do not try to time the markets. कोई भी टाइम नहीं कर सकता है, स्पेशली मैं और फिलिप कैपिटल टाइम नहीं कर सकते, पर हम लोग ये भी समझते हैं विकास के जल्दी क्या है पैसा इन्वेस्ट करने की। आज सपोज आज मेरे को मेरा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने का था, मैं पहला दिन पे इन्वेस्ट करता था पूरा पैसा, आंसर इज नो। ओके, तो वाई द हरी फॉर इन, तो हम लोग हमारा टाइम लेंगे, कभी 2 महीना 3 महीना 6 महीना, हम लोग धीरे धीरे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। मे बी वीट फिलिप स्टार पोर्टफोलियो ऑफ एनी ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज ऐसे। ऑफकोर्स आज निफ्टी 17,000 नहीं होता था, 8,000 होता, तो हम लोग सब इन्वेस्ट कर देते थे, सब पैसे। नहीं, मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अभी कुछ फंड मैनेजर्स ने बोला कि डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप फिक्स्ड इनकम में ऐसा कॉल लेते हैं ड्यूरेशन का? या हम लोग ये जो हमारा फिलिप स्टार पोर्टफोलियो वी इन्वेस्ट ओनली इनटू इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। हम लोग डेट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं। सो सी यू नीड टू हैव एन एक्सपर्टीज फॉर एवरीथिंग। ऑफ कोर्स फिलिप कैपिटल का बहुत बड़ा फिक्स्ड इनकम डेस्क है काइंड ऑफ थिंग, बट ऑफ कोर्स इट इज एट आर्म्स लेंथ चाइना। बट ये वाले स्कीम में हम लोग खाली इक्विटी बेस्ड इक्विटी पोर्टफोलियो, वही मैं जानना, नहीं ठीक बात। दूसरी चीज जानना चाह रहा था कि यू कस्टमाइज द पोर्टफोलियो आल्सो फॉर मेनी इन्वेस्टर्स। So how do you customize the portfolio and how difficult it is, because आपके पास अगर इतने पोर्टफोलियो आए हैं और आएंगे तो आप उसको हर अलग अलग पोर्टफोलियो को कस्टमाइज कैसे कर पाएंगे? तो ये भी एक दूसरा सवाल हम लोग के आता है। तो वन ऑफ द यूएसपी अक्रॉस हमारे सब स्ट्रैटेजीज में वी कस्टमाइज द पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन व्हेन द क्लाइंट इज एंटरिंग, क्या वैल्यूएशन है, वो लेवल पे क्या अच्छा लगता है। सी हमारा मानना ये है कि क्लाइंट पीएमएस में इन्वेस्ट कर रहा है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, वो कस्टमाइज करना चाहता है। तो अभी मैं मॉडल पोर्टफोलियो 2 साल पहले वो जो क्लाइंट के लिए बाई कर रहा हूँ, आज सेम ही स्टॉक सेट ऑफ स्टॉक्स बाई करूँगा, आई थिंक आई एम डूइंग अ डिससर्विस फॉर अ एग्जिस्टिंग न्यू क्लाइंट दैट इज कमिंग। तो हम लोग अक्रॉस सब स्कीम में कस्टमाइज करते हैं, पर हमारा एक स्ट्रैटेजी है विच इज़ नेम एज स्पेसेस, इन्वेस्टमेंट अप्रोच है स्पेसेस करके, जिसमें हम लोग कंप्लीट कस्टमाइज करते हैं। तो हम लोग क्या एक क्लाइंट के पास से मैंडेट लेते हैं या मे बी हमारे पार्टनर के पास से मैंडेट लेते हैं कि क्या क्लाइंट ने ऑलरेडी सपोज 3-4 अलग पीएमएस में इन्वेस्ट किया, उनका खुद का डायरेक्ट एक्सपोजर रहेगा, तो क्लाइंट हमको बोल सकता है कि भाई हम मेरे को ये वाले सेक्टर्स में या ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना। सी क्लाइंट तो आप थीम बेस्ड, तो हम लोग क्लाइंट को नहीं पूछ रहे कि किधर इन्वेस्ट करना है। या एक बड़ा क्लाइंट है जिसका सब जगह पे है, या अभी मेरा एक क्लाइंट है जिसने मेरे को बोला निश्चित में आप खाली 10 मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो हम लोग ऐसा मैंडेट लेते हैं। एक हमारा क्लाइंट है जो डॉक्टर है, जो खाली हम लोग को मैंडेट दिया है, आई वांट यू टू इन्वेस्ट ओनली इनटू हेल्थ केयर, सो वी टेक दोस काइंड ऑफ मैंडेट्स, सो दैट इज व्हाट दिस आर द काइंड ऑफ मैंडेट्स वी टेक। ऑफ कोर्स कोई बोलेगा भाई मेरे को खाली पेनी स्टॉक्स या पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, वेयरइन वी डू नॉट रेजोनेट विद दैट थीम, देन वी विल से नो, यू माइट से दैट नो, वी आर नॉट। पर इसमें आपका जो दूसरा सवाल था कि टाइम लगता है, but that is what we are getting paid for, yeah? और वही है सवाल कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे और इसमें कि क्योंकि क्लाइंट कस्टमाइजेशन चाहता है, इसके लिए वो पीएमएस में आ रहा है। टाइम जाता है अच्छा खासा, बट दैट इज वेयर वी हैव अ वेरी लार्ज टीम, टेक्नोलॉजी है, एंड दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग पेड फॉर। सो फॉर माय स्केलेबिलिटी आई कांट से नो टू द क्लाइंट, और अक्रॉस द थीम्स द आइडिया इज टू जनरेट रिटर्न्स फॉर द क्लाइंट्स। नो, मेक सेंस। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड निशित। सो अभी क्या हो रहा है कि गिफ्ट सिटी में लोग अपना जितने भी एसेट मैनेजर्स हैं इंडिया में अपनी अपनी एक ऑफिस वहाँ पे ओपन कर रहे हैं और देयर फोकस इज़ टू गेट एनआरआईज मनी बैक इन इंडिया। बट आपका एक यूनिक है, आपने वहाँ पे आप अपना एस्टेब्लिशमेंट करने की कोई आपने किया है रिसेंटली, और आप इंडियन इन्वेस्टर का पैसा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में कराना चाहते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि, एंड दिस इज़ द क्वेश्चन दैट आई गेट फ्रॉम माई इन्वेस्टर्स, दे सेड पहले तो ये बताएंगे कि ग्लोबल इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए, पहली बात।
और दूसरा आप कैसे मदद कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है या कि क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सी, इंडिया इज गोइंग टू डू वेरी वेल। मैं जो डोमेस्टिक पीएमएस फंड मैनेजर हूँ, तो मैं तो हमेशा इंडिया की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 5, 6, 7 साल में इंडिया में जो पैसा बनेगा किसी भी जगह पे नहीं बनेगा, पर एक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो आप जब भी ग्लोबली इन्वेस्ट करते हो, तो ग्लोबली क्या आप बाकी सब कंट्रीज के इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय ग्लोबल। तो क्यों करना चाहिए? एक तो आपको जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आप यूएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, एशिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक जियोग्राफिकली डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। आपका सब इंडिया में, कल उठ के इंडिया स्टोरी बहुत ही अच्छा है, पर से सपोज 5-6 साल कुछ बड़ा वॉर हो गया है, कुछ भी हो गया, सो दैट इज वाई डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जियोग्राफिकल डाइवर्स। सेकेंड इज डॉलर डाइवर्सिफिकेशन। ऑन एन एवरेज आज विकास 3 से 4% से INR डिप्रिशिएट हो रहा है। आज 82 हो गया है। मेरे को ध्यान है, जब भी मैंने मेरा MBA किया था तभी $45 के करीब था। मेरा MBA का कॉस्ट में भी 25-30 लाख के करीब कुछ होएगा, तभी मैंने US से किया होता। तो यार आज डॉलर है 82। MBA का कॉस्ट वो सेम आज किसी को करना रहेगा 70-80 लाख, 1 करोड़ भी हो गया। सो दैट इज वाई if your children are going to do pursue education abroad, I think you should start from right now. तो एक ये भी very important reason है kind of thing। तो एक क्या अच्छा खासा किटी बन जाएगा maybe after 10 years 15 years, but you have to start from today। And third and the most important reason according to me is because आपको बहुत सारे थीम में इन्वेस्ट करने को मिलता है जो थीम्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ओके, आज सेमीकंडक्टर के शॉर्टेजेस चल रहे हैं। आज आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। 5G में इन्वेस्ट करना है, नहीं है कुछ भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, यूरेनियम है। आपको इजराइल इज सपोज नोन फॉर इट्स इनोवेशन, आपको उधर इन्वेस्ट करना है, तो वो सब अपॉर्चुनिटीज़ इधर नहीं है। काइंड ऑफ इंडस्ट्री 2.0, हेल्थ केयर, ये सब जो बड़े सब है, वो सब अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्ट। तो इसके लिए आपको बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स फर्स्ट 2 रीजन इन इटसेल्फ आर बहुत ही बड़े रीजन है, पर ये थर्ड रीजन बहुत ही बड़ा रीजन है। दैट एक ये आपको क्या, यू विल गेट टू इन्वेस्ट इनटू थीम्स ऑफ टुमारो। इंडिया में भी ये सब थीम्स आएंगे, पर टाइम लग जाएगा। सो एक ये 3 बड़े बहुत ही रीजन। तो हम लोग ने क्या किया, आपने जैसा बोला विकास कि गिफ्ट सिटी में सब लोग अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, पर 99% ऑफ द पीपल हु आर सेटिंग अप द बिजनेस इन गिफ्ट सिटी इज टू get the money of NRIs and foreign nationals into India. We are the only ones। हम लोग अभी एज अकेले जिसने हम लोग का पूरा बिजनेस सेटअप किया, PMS सेटअप किया, जिसमें हम लोग बात करें कि इंडिया का पैसा हम लोग कैसे बाहर लेके जाए। तो LRS के रूट, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू आप ऑन एन एवरेज एवरी ईयर फॉर पैन कार्ड यू कैन रेमिट अप टू $250,000 RBI ने अलाउ किया है। ये वाले जो ग्लोबल PMS है जो हम लोग ने गिफ्ट सिटी से लॉन्च किया है, उसमें मिनिमम टिकट साइज $150,000 है, सो क्लोज टू अराउंड 1.2 करोड़। ये उधर के रेगुलेटर का अपना, उधर रेगुलेटर हाउस से भी है, उधर गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर IFFC है, तो उन्होंने सेट किया हुआ है। सो ये रेगुलेशन मिनिमम थ्रेशोल्ड का भी है? मिनिमम पहले ये $75,000 थे विच वाज इक्विवेलेंट टू 50 lakhs, पर अभी उन्होंने इंक्रीज कर दिया है, $150,000 किया है। तो ये रेगुलेशन है उधर के। और हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज हमारे इतने सारे ऑफिसेज है ग्लोबली, हमारे एनालिस्ट है, तो सब जगह से हम लोग को फीडबैक आता है। ऑफकोर्स एक अलग से डिफरेंट फंड मैनेजर है मिस्टर मिहिर शिरगांवकर, ही कम्स विद अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एजुकेशन बैकग्राउंड, ex-IIM अहमदाबाद काइंड ऑफ थिंग, ही मैनेजेस दिस फंड। तो एक हमारे एक्सपर्टीज भी है, तो ऐसा ही नहीं कि खाली अलग प्रोडक्ट है, इट इज़ अ एक्सपर्टीज दैट वी आर गेटिंग इनटू इट। और हम लोग अलग अलग थीम में इन्वेस्ट करते हैं ग्लोबली, एंड द फंड इज ऑलरेडी लाइव, वी हैव गॉट मेनी investors already, and this is also something very unique। तो फिलिप कैपिटल में आप देखेंगे तो हम लोग ऑफ कोर्स हमारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स है डोमेस्टिक में भी, वेयर इन द परफॉर्मेंस इज गुड, पर आप हमारे बाकी सब प्रोडक्ट्स देखेंगे यूनिक है। दिस आल्सो इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। तो ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ टिकट साइज थोड़ा हाई है, बट फॉर एन HNI क्लाइंट दिस इज लाइक अ नो ब्रेनर। आई वुड स्ट्रांगली से, हमें बहुत फीडबैक आता है, बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो पूछते हैं कि भाई अगर उनको बाहर इन्वेस्ट करना है तो कौन सा है। तो पहली बात तो इंडिया में बाहर इन्वेस्ट करने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, बहुत कमी है उसमें। आपका एक एवरेज, बिकॉज आपका ग्लोबल एक्सपर्टीज है, तो आपको ग्लोबल समझने में बहुत समझ है। तो मेरे को जस्ट समझना था, वी आर जस्ट ट्राइंग टू डीप डाइव इन दिस फंड। सो अगर आपको अभी ये जो 100 रुपीज़ एलोकेशन करना है, तो ग्लोबली आप कैसे
देखते हैं कैसे करते हैं। पर- Yeah. तो हम लोग ग्लोबली कैसा, हम लोग इसमें है ना ETF में खाली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, बिकॉज सी स्टॉक में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। आप आउट ऑफ द 5 फैंग स्टॉक्स 2 और 3 ऑफ द फैंग स्टॉक्स आर डाउन बाय 50-60%, या तो क्या इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैसिव फंड में ETF विच इज़ अ पैसिव फंड, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आज बहुत सारे लोग पूछा रहे ETF में इन्वेस्ट करने के लिए हमारा क्या काम है, ओके, पर दैट इज वेयर द एक्सपर्टीज है। हम लोग बोलते हैं इंडिया में 1500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, ग्लोबली द मोर देन 15,000 ETF, या सो किधर क्या करना। और इंडिया के जैसे खाली थीमेटिक स्कीम नहीं, उधर से सपोज आपको आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इन्वेस्ट करना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के भी सब ETF है, देयर इज अ सेमीकंडक्टर, बैटरीज है, या सो द ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिलेटेड ऑटो एंसिलरी, ऐसे सब, इजराइल इनोवेशन फंड, ओके, सो ऐसे बहुत सारे ETFs है। सो आवर एक्सपर्टीज कम्स देयर, सो व्हाट वी मैनेज द पैसिव फंड्स इन अ वेरी एक्टिव वे, ओके। तो मैं एलोकेशन वाइज ऑफ कोर्स US में हम लोग का अच्छा खासा एलोकेशन है, चाइना और यूरोप में हम लोग का भी एलोकेशन बहुत ही कम है, बिकॉज of the we could foresee that they are having some kind of an issue. ऑस्ट्रेलिया में because of certain mining उधर है हम लोग का, एशिया में इमर्जिंग मार्केट्स में थोड़ा हम लोग का है एक्सपोजर। सो इट्स अ वेरी वेल राउंडेड काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट वी हैव इट अक्रॉस द ग्लोब काइंड ऑफ अ थिंग, या सो पर एक्सपोजर बिकॉज इट इज थ्रू एन ETF, रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। And on an average, if you make decent, even if early double digit आप returns बनाते हो, but in dollar terms if you consider, so अच्छा खासा return Oh बन yes, सकता है। that makes lot of sense. So great, Nishit. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you so much for. Thanks, taking the Vikas. time Again, out. you guys are doing a great job. Yeah. So please continue doing that. Yeah. So our endeavor is to invite industry experts like you, and therefore we call this show as Ask the Expert. शो एंड रीड योर माइंड। आज आपने इतनी सारी चीज़ें सिखाई हमारे इन्वेस्टर्स को, आई एम श्योर दे गोइंग टू अप्रिशिएट। सो अगर इन्वेस्टर्स आपको अगर ये शो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस तरह के और शोज़ आगे फ्यूचर में पहुंचाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू नीड एनी मोर डिटेल्स अबाउट फिलिप कैपिटल, देयर पोर्टफोलियोज, प्लीज़ विजिट AIFPMS.com and book your call with our expert team, and they will help you invest in the right strategy. Thank you. Thank you.